Hello everyone, very good evening. Welcome all of you on Vedantu Commerce. It's me Aditya Arya, Master Teacher of Mathematics and Statistics. We are over here for the purpose to discuss what to do after class 12th. क्या करना चाहिए? See, when someone asks me what to do after 12th or after graduation, I reply one basic answer. What is your interest? Have you figured it out? If you have figured it out, you are really going to rock in your field. Because उसमें आपका interest है, you really love to do it. If you have not figured it out, what's your interest? Do not worry, I'm over here, I will help you out. In this video, I will be telling you all the courses that you can do with some basic idea, basic tagline. If you are having this particular thing in your mind, you can go into this. बहुत detail में नहीं जाऊंगा मैं, but if you really wanted me to go in more detail, you can write down in the comment section. I will be recording a separate video going in detail, talking about everything from career opportunities, the future options, what is the average package, what is the curriculum of the course, what kind of person should go into it. I will be discussing all into it. तो आगे बढ़ने से पहले it's a request to everyone to hit the like button if you really love to come over here. Share this video with your friend and subscribe if you're new over here. And thank you so much all of you, those who have already done this, and thank you so much for joining me right now. शुरुआत करते हैं सेशन की. सबसे पहली चीज हमने बोली थी कि what is your interest? If it will be really great to know and it will be really great if you can comment down in the comment section. मुझे अच्छा लगेगा जानने में कि क्या आपका इंटरेस्ट है and I can help you much better. तो तीन पर्सपेक्टिव होते हैं इसके लिए. द वेरी फर्स्ट पर्सपेक्टिव इज टू आस्क योरसेल्फ कि व्हाट इज दैट थिंग दैट यू आर डूइंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. आप पिछले कुछ सालों से एक एक्टिविटी बार बार रिपीटेशन में कर रहे हो. यू नो व्हाट इज द इंटरेस्ट? दिस इज द सेम थिंग. Interest is one of those activities which you are doing frequently, continuously for a longer period of time. That is interest. So either it can be in the commerce field, either it might not be from the commerce field. हो सकता है commerce field से आपका interest निकले या नहीं निकले, है ना? Considering if you know your interest, that means that's really great. This video will be really helpful for you still because I will be connecting your interest with the course. मैं आपके interest को आपके course से connect करने वाला हूँ. Now, second perspective, I do not know what is my interest. Now what to do? Again, in this category, we are having two perspectives. One is I will be helping you to find it out. And if still you are not satisfied, sir, I am still not sure what to do, I will be guiding you then what to do. आपको एक छोटी सलाह दूंगा, अगर आपको अच्छी लगती you can go into this. Now, if you do not know what is your interest, just look out past 2-3 years, 11th and 12th, not 2 or 3 years, just 11th and 12th, and see in what subject you are really enjoying, not performing good or well. That's a different thing. Were you really enjoying your subject? For an example, it can be maths, it can be economics, it can be accounts or business studies. हो सकता है कि आपको एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा ना लगे. For example, you feel like business studies is not a good subject, but you feel like economics is really great. So you can decide not to go into the BBA. You can decide to go into the Bachelor of Economics. Isn't it? तो आप figure out करो कौन सी चीज आपको goosebumps और kick देती है. Do you really love to know how the economy works? Of a country, of a individual, of an organization. आपने सब पढ़ा होगा मैक्रो और माइक्रो. आप चेक करिए कि मैक्रो में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आता है या माइक्रो में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है. जस्ट फॉर 2 years, if you are in the class 10th or 11th, you can keep this thing in your mind. आप इस चीज को अपने दिमाग में बिठा के रखो. Example, mathematics. If you feel like mathematics is really tough, you can skip this part. Or if you feel like mathematics is really something which really gives you kick, आपको सवाल लगाने में बड़ा मजा आता है. You can be the analyst in some company. Analyst, जिसका analytical mind होता है. The one who is choosing and who analyst is having a very good package. तो करियर को डिसाइड करना चाहते हो तो पहले इंटरेस्ट को डिसाइड करिए. और फिर भी अगर आपको लगता है सर आई एम नॉट श्योर, लाइक आई एम फेसिंग प्रॉब्लम इन ऑल द 4 सब्जेक्ट बट स्टिल आई वांटेड टू, तो मैं आपको छोटी सलाह दूंगा कि आप एक काम करो, 2 कोर्स पकड़ो, इसको करना शुरू कर दो. ज्यादा सोचो मत, बिकॉज द मोर यू थिंक द मोर टाइम यू विल वेस्ट. तो मैं आपको 1-2 कोर्स बता दूंगा कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, जस्ट डू दीज 2 कोर्सेज व्हिच इज रियली वेरी गुड एंड स्टार्ट डूइंग इट.
तो एक तो पर्सपेक्टिव होता है कि आप अपने इंटरेस्ट को फिगर आउट करो, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो फिगर आउट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, बहुत बेसिक सा है। जस्ट लुक आउट फॉर क्लास 11 12 सब्जेक्ट्स, हाउ यू आर परफॉर्मिंग, हाउ यू आर बिहेविंग टुवर्ड्स दीज सब्जेक्ट। आपको मजा आता है, जैसे मैं आपको बोलूं कि मुझे मैथ्स करने में बहुत मजा आता है, लाइक आई एम डूइंग होल डे मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो मुझे इन दो सब्जेक्ट में बहुत मजा आता था, लाइक आई एम रीडिंग रैंडम बुक्स, मैं अलग अलग किताबें उठा के पढ़ रहा हूं, मुझे अच्छा लगता था। तो अब आप सोचिए, अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना अच्छा लगता है, अगर आपको लेट्स सपोज यू लव टू रीड द बायोलॉजी, तो आप वो पढ़ लीजिए। अब इकोनॉमिक्स भी पढ़ना अच्छा लगता है, बायोलॉजी भी पढ़ना अच्छा लगता है, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, देन यू हैव टू फिगर इट आउट वेयर यू वांट टू इन्वेस्ट योर टाइम, बट आई होप यू गॉट माय पॉइंट। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट चीज है, चलो यू हैव फिगर्ड आउट योर इंटरेस्ट, बट विच इज द बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज वेयर यू कैन हैव अ गुड जॉब, a good package, good salary that you can have, or where you will be having the very good growth. That's the second perspective that you always keep in your mind. What to do after 12th? That is a deciding factor, isn't it? So in this video, I will be sharing all the courses that you can do after your 12th. 12th के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट द प्रोफेशनल कोर्सेज, समथिंग विच इज नॉट डिग्री, जो डिग्री कोर्स में नहीं आते हैं। तो जो डिग्री कोर्स में नहीं आते हैं, दे आर सीए, सीएमए। आपके सीए सीएमए आपके कोर्स हो चुके हैं, ये दो कोर्सेज हैं, सीए सीएमए और सीएस। ये वो कोर्सेज हैं जहां पर आपको यू डू नॉट नीड एनी ग्रेजुएशन डिग्री, यू कैन स्टार्ट लर्निंग दीज। आप you can enroll with an institute certified by, for an example, for CA it's ICAI, International Chartered Institute of Chartered Account of India. Institute of Chartered Accountant of India will certify some institutes under which you can have these courses. आप अपना level 1 level 2 level 3 दीजिए। तो CA हुआ, CS हुआ और CMA हुआ, ठीक है। अब मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा व्हाट इज सीए, बिकॉज आफ्टर यू माइट आई हैव डिलीवर्ड वन सेशन व्हाट ऑल अबाउट द सीए, और एक सेशन दिशा मैम का भी हुआ है ऑल अबाउट सीए एंड सीएमए। तो सीए और सीएमए के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है, यू कैन जस्ट सर्च ऑल अबाउट सीए बाय आदित्य और बाय दिशा मैम, दोनों चीजों में आप कर सकते हो। You will get all the details, क्या फीस है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, एंड इन शॉर्ट आई वुड से इट इज समथिंग दैट यू विल बी डिजायर्ड ऑफ। इन टर्म्स में आपको बोलूंगा, इन टर्म्स ऑफ सैलरी इट्स अ वेरी नाइस एवरेज पैकेज, आपका जाता है 5 6 7 8 10 तक भी चला जाता है, इट डिपेंड्स कंप्लीटली। यू कैन वर्क एज एन इंडिविजुअल, यू कैन वर्क अंडर सम फर्म, टेक एन इंटर्नशिप, वेरी गुड इंटर्नशिप, यू कैन स्टार्ट योर ओन ऑल्सो। इसके अलावा जो आपका अगला कोर्स है, दैट इज इन CS, कंपनी सेक्रेटरी। इट्स अ पर्सन हु विल बी डीलिंग विद द लॉज ऑफ कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ में डील करता है। हालांकि अगर आप चाहो तो यू कैन डू योर BA LLB, बट BA LLB इज समथिंग विच इज डीलिंग इन ऑल काइंड ऑफ लॉज, बट कंपनी सेक्रेटरी इज मोर टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द कॉर्पोरेट लॉ, जो किसी कॉर्पोरेट को हेल्प करेगा टू डील विद द थिंग्स। मैं आपको सीधा शब्दों में बोलूं कि इट विल बी डीलिंग विद द थिंग्स, इट विल बी गाइडिंग अ कंपनी वेदर इट्स लीगल टू डू, एंड इफ इट इज लीगल टू डू, what are the legal things or the procedure that he or she or it has to perform. For an example, अगर मुझे ITR फाइल कर, or not ITR, let's suppose I want to open my company, what are the legal compliances I have to follow? A CS will guide this, and it's a very nice option. It is having a very good the same, you can say CA, CMA and CS are having approximately same average salary. ग्रोथ काफी अच्छी है, तो आप जा सकते हो इसके अंदर। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, दे आर CA एंड FM, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, FRM, ठीक है। चार्टेड वन इज CMA हमने डिस्कस कर लिए, तो FRM की हम बात करते हैं। तो FRM की हम बात करेंगे तो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर इज अ वन हु विल बी working in the field of finance, but specifically working as a financial risk manager, basically managing the risk
रिगार्डिंग द फाइनेंस। इन शॉर्ट अगर आपको समझना है तो डिटेल में अगर आप चाहते हो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। तो कंपनी का एक आप बोल सकते हो वेल्थ क्रिएशन करने में बहुत बड़ी इट इज हैविंग अ वेरी गुड रोल, FRM इज हैविंग अ वेरी नाइस रोल। तो ये एक आप कोर्स कर सकते हो FRM, यू हैव टू गेट द नाउ, बट FRM रिक्वायर्स सम ग्रेजुएशन। आप किसी भी फील्ड से आप ग्रेजुएशन कीजिए, हैव एनी ग्रेजुएशन डिग्री, एंड देन यू कैन डू द सर्टिफिकेशन कोर्स, ये आप कर सकते हो, ठीक है। और इसकी अगर हम सैलरी बात करें तो एवरेज सैलरी 6 लाख 7 लाख 8 लाख, वही एवरेज जो आपका CA CMA के अंदर होता है। और अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो इट कैन गोज अप टू 20 लाख 25 लाख 30 लाख तक भी जा सकता है अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज। दिस इज यू कैन से इट्स द सर्टिफिकेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय द US गवर्नमेंट, सो यू कैन ऑल्सो परफॉर्म आउटसाइड द कंट्री, ये आपके लिए एक अलग फायदा रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हुए जो आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ कोर्सेज, देयर इज अ वन मोर ओके। अब हम बात करते हैं ग्रेजुएशन कोर्स के बारे में, ठीक। तो ग्रेजुएशन कोर्स के बारे में अच्छा एक पॉइंट रह गया था मेरा कि CMA इंक्लूड्स यू कैन से 60% ऑफ FRM, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर का जो रोल होता है, CMA डू दैट रोल फॉर 60-70%। यानी कि आप कह सकते हो कि CMA इज FRM प्लस एक्स्ट्रा पार्ट। सो डेफिनेटली CMA इज अ बेटर ऑप्शन, वो आपका एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हाँ उसको करने के लिए थोड़ी फीस ज्यादा लगेगी और इट्स ऑब्वियसली मोर डिफिकल्ट देन FRM, बट यस ऑब्वियसली मोर ग्रोथ एंड मोर इन डिमांड देन FRM। तो ये मैंने आपको कंपैरिजन में बता दिया CMA एंड FRM के बीच में कि व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड विच वन इज हैविंग मोर बेटर अपॉर्चुनिटीज। अब इसके अलावा हम बात करते हैं ग्रेजुएशन के बारे में। नाउ सी ग्रेजुएशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया, FRM करने के लिए यू माइट बी नीडिंग द ग्रेजुएशन, CMA करने के लिए माइट बी नीडिंग ग्रेजुएशन, CA के लिए कोई जरूरी नहीं है, आप यू कैन स्टार्ट योर ओन, लेकिन आप करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड यू कैन मेक अ कॉम्बो ऑफ योर प्रोफेशनल कोर्सेज विद योर ग्रेजुएशन कोर्सेज। नाउ देयर आर 2 ऑप्शन इन ग्रेजुएशन कोर्सेज, रेगुलर और ओपन। If you are performing your professional courses on, if you are performing your, or if you are pursuing your professional courses, then I would say that your focus must be on the skill set. This is the reason why we do professional courses, to get the skill set. Professional courses is having the more skill set than the graduation course. Okay? But graduation is like a level up. You call yourself now, as of now, if you will do CA without any graduation, you will be still called as a 12th pass. But if you want to call yourself a graduate, तो उसके लिए लगेगा। लेकिन हाँ, मान के चलिए कि FRM and CMA are giving the skill set of the post graduation level. उस लेवल की आपको नॉलेज मिलती है। तो आप सोचिए अब कि उस लेवल की अगर आपको नॉलेज मिलती है तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप कुछ कोर्सेज को बाद में करें। तो you get my point. I have told you 4 courses: CA, CS, CMA, FRM. We have discussed more about FRM and CMA, and as I am saying, FRM and CMA are post-graduation level. You can say the skill set is that high. You might find it difficult, so you can do it after your graduation, any graduation. But CA and CS are much easier than that, and you can say is having a very good career opportunity. You can start working quickly. एंड यू कैन परस्यू इट एट द सेम टाइम, आप अपनी ग्रेजुएशन से कर सकते हो। तो ये 2 ऐसी चीजें जो आप यू कैन परस्यू पैरेलली टू योर ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन के अंदर हमने बात कर ली कि यू कैन डू इट रेगुलर और यू कैन डू इट डिस्टेंस लर्निंग। यू कैन डू इट डिस्टेंस लर्निंग का मतलब है कि आप एग्जाम देने के लिए आते हैं। फॉर एग्जाम्पल IGNOU यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, वेयर यू कैन अप्लाई एंड यू विल जस्ट pay the fee and you can learn everything by yourself. They will provide you the content. It's a very nice content. You can learn by yourself, or you can hire some teacher, or you can ask for someone, or you can ask for a mentorship जो आपको सारी चीज गाइड करेगा कैसे क्या पढ़ना है। एंड यू कैन जस्ट गो टू द कॉलेज फॉर एग्जामिनेशन, और शायद वो भी अभी नहीं है क्योंकि इट्स कोरोना पीरियड।
तो मैंने आपको दोनों चीज बता दी। अगर आपको प्रोफेशनल कोर्स करने हैं तो इट्स बेटर टू गो तो ओपन, डू इट फ्रॉम योर होम और बाय योरसेल्फ। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर, आई वांटेड टू मीट पीपल, आई वांटेड टू गो इनटू कॉलेज, आई वांट टू इंटरेक्ट विद द पीपल, व्हिच आई रियली आल्सो रिकमेंड, कि अगर आपको देखो, अगर आप ओपन करोगे मतलब ओपन यूनिवर्सिटीज में जाओगे तो यू विल नॉट बी लर्निंग मेनी थिंग्स, रियल लाइफ थिंग यू विल बी मिसिंग, यू विल मिसिंग इंटरेक्शन, यू विल बी मिसिंग कम्युनिकेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर फील्ड। कॉमर्स फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है कनेक्शंस बनाना। मैंने आपके सीए वाले वीडियो के अंदर में यही बात बोली है कि मेक कनेक्शंस, मेक इंटरेक्शन विद द पीपल। So if you will go regular, you will definitely going to have much benefit, but yes, at the same time, you will be having the load. अगर आपको लगता है कि for you communication is not important, which is you're in the false dilemma, बिल्कुल आप बहम में हो, communication बहुत जरूरी चीज है, बहुत अच्छी चीज है और it will be really helping you. तो आपको लोड नहीं लेना है, in that case you can go for the open universities, but if you are ready to take the load, go for the regular one. अब कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं? BCom, we have made a separate video for BCom and BCom honors. क्या होता है, किस तरह के लोगों को करना चाहिए। मैं जनरली रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है what to do, you can go into the BCom. वो इसलिए कि Bachelor of Commerce is including all the subjects. So doing BCom is keeping the opportunities from all the field open. तब भी आपके सामने open ही रहती सारी opportunities. But for an example, if you will do BCom honors, it will be giving you specialization into one particular field. मान लीजिए इकोनॉमिक्स में आपने कर लिया, BCom honors in economics, BCom honors in accounts, in taxation, तो forever you will be working in that one particular field. आप कभी उसको चेंज नहीं करोगे। अगर आपको चेंज करना है तो you have to do things again, आपको वापस से करनी है। But again at the same time, if you are having a specialization in one particular field, that is your requirement is more than a person who does not have any specialization. Simple. इसके अलावा और कौन से कोर्सेज की हम बात कर सकते हैं? इसके अलावा अगर हम बात करें तो BBA आपका एक कोर्स हो गया। BBA, if you wanted to go into the field of management, but yesterday we have discussed a video जहां पर हमने बात की है कि अगर आपको लगता है मैनेजमेंट में जाना ही है, and if you can invest some 20-30 lakh rupees for 5 years, IPMET is a very good option. If you haven't watched the video, just check it out. Integrated program of management. But if you wanted to do first BBA, अगर आप चाहते हो कि सर पहले मैं BBA कर लूं because मेरा शायद IPMET एग्जाम ना निकले probably, तो you can go for BBA. Now BBA के अंदर भी आपका आता है BBA normal और BBA इंटरनेशनल बिजनेस और BBA कंप्यूटर एप्लीकेशन, टेक्निकल प्लस मैनेजमेंट का नॉलेज हो गया। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? बैचलर ऑफ आर्ट्स इन लॉ, BA LLB इसको हम बोलते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया BCom इकोनॉमिक्स, BCom अकाउंट्स, BCom ई-कॉमर्स स्टेट्स पे हम बात कर सकते हैं। बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस भी हम कर सकते हैं। ये सब कॉमर्स के फील्ड हैं सारे। बैचलर ऑफ कॉमर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ये भी बहुत बढ़िया फील्ड है। If somebody wanted to work as an auditor in the bank sector, तो उस केस में आपको ये वाला कोर्स करना चाहिए, बैचलर ऑफ कॉमर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस प्लस CA। CA क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये दोनों कोर्स जब आप मिक्सअप करोगे तो इट विल ओपन योर डोर्स फॉर योर बैंकिंग सेक्टर एज एन ऑडिटर, तो एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा बैचलर ऑफ कॉमर्स इन फाइनेंशियल मार्केट, तो आपका ये स्पेसिफिक हो गया कि आपको फाइनेंस मार्केट के टूल्स और आप सारी चीज लर्न करोगे एंड यू विल बी हेल्पिंग द कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल्स इन वेल्थ क्रिएशन एंड एनालाइजिंग द रिस्क दैट दे आर इन्वॉल्विंग इन रिलेटेड टू फाइनेंस। तो ये सारी चीजें हैं। तो आई हैव टोल्ड यू ऑलमोस्ट ऑल द बेसिक फील्ड्स जिसमें आप जा सकते हो। बाकी इसके अलावा if you are having any queries, if you wanted me to make a separate video on one particular course which I have discussed in this video, or if you wanted anything from your side कि सर इस पे आप वीडियो बनाओ, and I will make sure that you will be having all the knowledge from salary to course fees, course structure, and what books that we should refer to go into this. ठीक है, तो स्टार्ट करो अपना लर्निंग, स्टार्ट करो अपना इंटरेस्ट फिगर आउट करना। एंड guys, there is one more notification. We are having 50% off on all the courses that we are running on the Vedantu Commerce. तो आपके सारे कोर्सेज पर 50% ऑफ है। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।
तो क्रिसमस का ऑफ चल रहा है, तो बिफोर द क्रिसमस एंड्स grab this opportunity and start enrolling and start learning with your favorite master teachers. See you all in the next video. अगर आपका कोई भी डाउट रहता है, I will be really happy to take it. आज के लिए इतना ही. Bye bye. Take care. Till then, see you all.